دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں جنوب مشرقی ایشیا میں واقع دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا کی۔ انڈونیشیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ 17,508 جزیروں پر پھیلا ایک بے حد خوبصورت ملک ہے۔ انڈونیشیا کے لوگوں کا شمار دنیا کے سب سے چھوٹے قد والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے اکثر لوگوں کا قد 4.5 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انڈونیشیا کی سیر و سیاحت، تاریخ اور کلچر کے علاوہ ایسی دلچسپ معلومات سے آگاہ کیا جائے گا جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو اس ملک کو مزید قریب سے جاننے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گھنٹی کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو انڈونیشیا کا مکمل اور سرکاری نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا کا کل رقبہ 19,04,670 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کی 14ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، جبکہ اس ملک کی کل آبادی 26,80,03,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے مسلم ممالک میں پہلے جبکہ دنیا کے چوتھے نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ جکارتا کو انڈونیشیا کا دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انڈونیشیا کا پرچم 2 سادہ سرخ اور سفید کلر کی پٹیوں پر مشتمل ہے۔ اس پرچم کو 17 اگست 1945 کو اپنایا گیا تھا۔ دوستو انڈونیشیا کے اگر ہمسایہ ممالک کی بات کی جائے تو نیوگنی، مشرقی تیمور، ملائیشیا، سنگاپور، ویتنام، فلپائن، آسٹریلیا، پلاؤ، انڈیا کنڈانام اور نیکوبار جزائر شامل ہیں۔ دوستو انڈونیشیا کے اگر مذاہب کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈونیشیا کی 88% آبادی مسلمان، 9% مسیحی برادری، 1% ہندو، جبکہ 2% آبادی میں بدھ مت اور دوسرے مذاہب کے پیروکار اس ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ بھی موجود ہے جس سے نکلنے والی آگ کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ اس نیلے رنگ کی آگ کے نکلنے کی وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ انڈونیشیا میں تقریباً 145 آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن سے پورا سال لاوا نکلتا رہتا ہے۔ 1836 میں انڈونیشیا میں سب سے خطرناک آتش فشاں کے پھٹنے سے 36,000 کے قریب لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ دوستو ویسے تو دنیا بھر میں رائج رواج کے مطابق ہمیشہ دلہن شادی کر کے دلہے کے گھر جاتی ہے، لیکن انڈونیشیا میں مقیم ایک قبیلے میں دلہا شادی کر کے تمام جہیز اور زیورات کے ساتھ اپنے سسرال رخصت ہوتا ہے۔ 54,700 کلومیٹر کی ساحلی پٹی کے ساتھ انڈونیشیا دنیا بھر میں کینیڈا کے بعد دوسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو ماضی میں جسم فروشی کے اڈوں کے حوالے سے انڈونیشیا کا شمار دنیا میں پہلے نمبر پر ہوتا تھا۔ اس ہیرا منڈی میں ایک وقت میں 2,000 سے زیادہ لڑکیاں جنسی تسکین کے لیے ہر وقت موجود ہوتی تھیں، لیکن 2014 میں مذہبی جماعتوں اور ملک کے باشعور لوگوں کے احتجاج پر اس مارکیٹ کو بند کر دیا گیا، لیکن یہ تتلیاں ملک کے گلی کوچوں میں آج بھی دعوت گناہ دیتی نظر آتی ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے انڈونیشیا کا سماٹر جزیرہ سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کا کل رقبہ 1,64,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ انڈونیشیا کا جاوا جزیرہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر انڈونیشیا کی آدھی سے زیادہ آبادی رہائش پذیر ہے۔ دوستو انڈونیشیا کی قومی اور سرکاری زبان بھاشا ہے جو ملک میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انگلش ہے۔ اس کے علاوہ 720 کے قریب دوسری زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں واقع گلورا بینک اسٹیڈیم دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس اسٹیڈیم میں ایک وقت میں 1,20,800 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ دوستو اس ملک کی اگر تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو دوسری صدی سے اس جزیرے پر آس پاس کے ممالک سے آئے لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ 12ویں صدی عیسوی تک ہندوؤں اور بدھ متوں نے باری باری اس خطے پر اپنی سلطنتیں قائم کی۔ اسی دوران 8ویں صدی عیسوی کے آغاز پر عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے اس خطے پر اسلام داخل ہو چکا تھا، جبکہ 13ویں صدی عیسوی تک انڈونیشیا کے اکثر علاقوں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔
15वीं सदी ईस्वी तक वो तमाम इलाके जो हिंदुओं और बुद्ध मतों के कंट्रोल में थे, इनमें भी इस्लाम फैल चुका था और पूरे इंडोनेशिया पर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई थी। 18वीं सदी ईस्वी तक यहाँ पर थोड़े थोड़े अरसे के लिए पुर्तगीजी और वलंदेजी हुकूमत करने में कामयाब रहे। फिर बरतानवी और नीदरलैंडी इस मुल्क पर हुकूमत करने आए, जिन्हें जापानियों ने निकाला और खुद काबिज हो गए। जापानियों ने इस खित्ते के लोगों पर आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। 1945 में एक दिल दहला देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया था जब जापान की आर्मी ने 40,000 लोगों को भूखा रखकर मौत की नींद सुला दिया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमला करके जापान को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से इनको भी इस मुल्क से निकलना पड़ गया। आखिरकार 17 अगस्त 1949 को इंडोनेशिया को आज़ादी नसीब हुई। दोस्तों, इंडोनेशिया की कुल जीडीपी 3.740 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी के हिसाब से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 7वें नंबर पर होता है। इंडोनेशिया की मजबूत मुईशत में सियाहत, सोना, रबड़ की एक्सपोर्ट, चावल, चाय, खजूर, काफी, अद्वियाती पौधे और मसालादार पौधों का अहम किरदार है। 2019 में सियाहत के शोबे से इंडोनेशिया को 28.2 अरब डॉलर हासिल हुए थे। इंडोनेशिया में आने वाले गैर मुल्की सियाहों में सबसे ज्यादा तादाद चीन, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान से आने वाले सियाहों की थी। इंडोनेशिया के समुद्रों में 300 इकसाम की मछलियां पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूड राफ्लेसिया भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसका वजन 7 किलोग्राम तक रिकॉर्ड किया गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। इसकी लंबाई 12 फुट तक होती है। ये छिपकली जानवरों के अलावा इंसानों को भी खा जाती है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का कौमी जानवर, कारोडा ईगल कौमी परिंदा और मोती के फूल को कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। दोस्तों, इंडोनेशिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62, जबकि आईडी मुल्क का डोमेन नेम है। इंडोनेशिया की करेंसी को इंडोनेशियन रुपया कहा जाता है। एक इंडोनेशियन रुपया 0.011 पाकिस्तानी, जबकि 0.0052 इंडियन रुपयों के बराबर है। दोस्तों, इंडोनेशिया में वाक़ बोनकाक जिया के करीब वाक़ ग्रासबर्ग कान दुनिया में मौजूद सोने की सबसे बड़ी कान है और तांबे की तीसरी बड़ी कान। जॉन रैंडो इंडोनेशिया का ही एक जानवर है जिसकी तादाद दुनिया भर में सिर्फ 50 के करीब रह चुकी है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से 5,845 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। दुनिया भर में पाए जाने वाले जज़ायर में से दूसरे, तीसरे और छठे नंबर पर आने वाले जज़ायर इसी मुल्क इंडोनेशिया में वाक़ हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में मुकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बंगालियों की है। इंडोनेशिया में बसने वाले लोगों की अगर नस्ली हवाले से बात की जाए तो जवाइज, मादोरेस, बेटसिक और सामनेजी नस्लों के लोगों की अक्सरियत इस मुल्क में रिहाइश पजीर है। इंडोनेशिया में मौजूद बोरो बदो मंदिर बुद्ध मत मजहब के पैरोकारों का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों, इंडोनेशिया में पाए जाने वाले 8 मकामात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिनमें मशहूर बोरो बदो मंदिर, कोमोडो नेशनल पार्क, जकार्ता टाउन, मौकन नेशनल पार्क और राजा अमीद जज़ायर शामिल हैं। 2004 में आने वाले सुनामी से सबसे ज्यादा मौत इंडोनेशिया में हुई थी, जिसमें तकरीबन 2,25,000 के करीब अफराद मौत की वादी में चले गए थे। दोस्तों, अगर आप झीलों का रंग बदलना देखना चाहते हैं तो ये मनाजिर भी आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेंगे। इंडोनेशिया में आतिशफशां पहाड़ कैलोमोटो पर इन झीलों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो गैसों के अखराज से नीले, सब, स्याह हत्ता के कई रंगों में पानी का रंग तब्दील करती दिखाई देती हैं। इंडोनेशिया जनूब मगरबी एशिया की सबसे बड़ी मुईशत है। इंडोनेशिया का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी रखने वाले ममालिक में पहले नंबर पर होता है। इस मुल्क की 60% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। दोस्तों, इंडोनेशिया का शुमार पाम ऑयल की पैदावार के हवाले से दुनिया के पहले नंबर पर होता है। दुनिया की 45% पाम ऑयल की एक्सपोर्ट इंडोनेशिया से होती है। 1912 में इंडोनेशिया से पकड़ा गया सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप शुमार होता है, जिसकी लंबाई 30 फुट के करीब थी। इस सांप को गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है।
दोस्तों ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जंगल इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस जंगल में आज भी ऐसे जंगली कबीले रिहाइश पजीर हैं जिनका आज की जदीद दुनिया से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। इंडोनेशिया में पैदा होने वाले बच्चे का 6 माह तक पाँव जमीन पर नहीं लगने दिया जाता। 54,700 किलोमीटर की साहिली पट्टी के साथ इंडोनेशिया दुनिया भर में कनाडा के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इंडोनेशिया में 3 टाइम जोन हैं। फ्रांस 12 टाइम जोन के साथ दुनिया में एक अलग मकाम रखता है। बैडमिंटन और फुटबॉल इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेले हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट दीगर खेले जाने वाले खेले हैं। इंडोनेशिया में इंसानों की औसत उम्र 69 साल है। दोस्तों आलमी इदारे के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा परिंदों और जानवरों की इकसाम पाई जाती हैं, जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले परिंदों और जानवरों का 15% बनती है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंडोनेशिया के पानियों में दुनिया भर में पाई जाने वाली मछलियों का 45% पाया जाता है। मुल्क भर के जजीरों को आपस में जोड़ने के लिए 5,40,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके अलावा रेलवे लाइन और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी इस मुल्क में मौजूद हैं। इंडोनेशिया में खाए जाने वाले खाने इंडियन, पाकिस्तानी और यूरोपीय खानों से मुमासलत रखते हैं। इंडोनेशियन लोग बुनियादी तौर पर गोश्त, मछली, सब्जियां और चिकन से तैयार की गई डिशेस को ज्यादा पसंद करते हैं। मुल्क में तालीम पर खसूसी तवज्जो दी गई है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 96% है। दोस्तों ये थी इंडोनेशिया के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।